ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 9 ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو نیٹ ورکنگ. کہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ انٹروڈکشن ٹو نیٹ ورکنگ ہمارے پاس کیا ہے. جی سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے ڈیٹا ہے کہ ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے. ڈیٹا ہمارے پاس پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ را فگرز از نون ایز ڈیٹا. کے را فیکٹس اور را فگرز ہوتے ہیں ڈیٹا کہلاتے ہیں. ڈیٹا اور بیسک ویلیوز, ڈیٹا جو ہے وہ بیسک ویلیوز ہوتی ہیں اور فیکٹس ہوتے ہیں. کمپیوٹر یوز مینی ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا. کمپیوٹر کے اندر بہت ساری ٹائپس یوز ہوتی ہیں ڈیٹا کی اسٹور ان ڈیجیٹل فارمیٹ. ڈیجیٹل فارمیٹ جو ہے اسٹور کرنے کے لیے سچ ایز ٹیکسٹ کی فارم میں ہوتا ہے, نمبرز کی فارم میں ہوتا ہے, ملٹی میڈیا اور ملٹی میڈیا کی فارم میں بھی ہوتا ہے. جی ڈیٹا اور آرگنائزڈ ڈیٹا جو ہے ایک تنظیمی ڈیٹا ہوتا ہے ان ڈیٹا بیس ٹیبلز. جیسے فار ایگزامپل آپ کا جو ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اٹینڈنس شیٹ کے اندر جو ہے سب کے نیم شامل ہیں تو یہ ڈیٹا بیس ٹیبل کہلائے گا. اینڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز آر یوز ٹو, اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ورک کرتی ہے ود لارج ڈیٹا بیسز, اور بہت سارے بڑے بڑے جو ڈیٹا بیسز ہیں ان کو وہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں, یوزڈ کرتی ہیں جی کام کرنے کے لیے. جی ٹائپس آف ڈیٹا ہیں ہمارے پاس. الفابیٹک ڈیٹا میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں کہ الفابیٹک ڈیٹا اس کے اندر A to Z جو ہوتے ہیں ورڈز ہوتے ہیں کمپیوٹرز کے اندر, یا آپ کے موبائل کے اوپر جو ہیں وہ A to Z جو ہے وہ کی بورڈ ہوتا ہے, تو اس چیز کا نام جو ہے وہ الفابیٹک ڈیٹا ہوتا ہے. الفا نومیرک ڈیٹا اسی آپ کے جس موبائل سے آپ میسج سینڈ کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ سے میسج آپ سینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ الفا نومیرک ڈیٹا بھی ہوتا ہے, یعنی کہ A to Z بھی ہوتے ہیں, اور جو ہے اسٹیرک پرسنٹیج اور نمبر @ آف یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. جی اس کے علاوہ ہمارے پاس آڈیو ڈیٹا جیسے آپ کوئی جو ہے وہ آڈیو وائس سینڈ کرتے ہیں اس چیز کا نام آڈیو ڈیٹا ہے. اور ویڈیو ڈیٹا, آپ کوئی ویڈیو لیکچرز جو ہے وہ ریکارڈ کر کے سینڈ کرتے ہیں یا کوئی ویڈیو کال کرتے ہیں یا کوئی ویڈیو میسج دیتے ہیں تو اس چیز کا نام جو ہے وہ ویڈیو ڈیٹا کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس لاسٹ میں ہے امیج ڈیٹا. امیج ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے کہ امیج ڈیٹا اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے پکچرز کی فارم میں ڈیٹا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ڈائیگرامز کی فارم میں ڈیٹا ہوتا ہے, اور موومنٹ اور ایکشنز کی فارم میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارا امیج ڈیٹا کہلاتا ہے. جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے واٹ از کمپیوٹر نیٹ ورک. کی کمپیوٹر نیٹ ورک ہمارے پاس کیا ہے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک از اے گروپ آف کمپیوٹرز. کہ یہ کمپیوٹرز کا گروپ ہوتا ہے, کمپیوٹروں کا ایک گروپ ہوتا ہے لنکڈ ٹو ایچ ادر, جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہوتے ہیں. جیسے آپ واٹس ایپ کے اوپر سارے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ میں ہیں, دیٹ انیبلس دی کمپیوٹر ٹو کمیونیکیٹ, اور یہ کمپیوٹرز کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ود اندر کمپیوٹر ایک دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اینڈ شیئر دیئر ریسورسز, اور اپنے جو ہے وہ ریسورسز یہ مراد ہے اپنی کوئی فائلز ڈیٹا اینڈ اپلیکیشنز, کوئی بھی چیزیں جو ہے کمپیوٹرز کے اوپر سینڈ کرنے کو جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کمپیوٹر نیٹ ورک کہلاتا ہے. جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کین بی کیٹیگرائز بائی دیئر سائز. کمپیوٹرز کو جو ہے وہ سائز کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے چھوٹا لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے, منی کمپیوٹر ہے, مائکرو کمپیوٹر ہے, ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے اور موبائل کمپیوٹر ہے. یہ سارے اس کو جو ہے پہلے دیکھا جاتا ہے سائز کے طور پہ. یہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یوزز اینڈ بینیفٹس آف کمپیوٹر نیٹ ورک. اس کے یوزز یہ بینیفٹس کمپیوٹر نیٹ ورک اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں. سم امپورٹنٹ یوزز آف کمپیوٹر نیٹ ورکس آر ایز فالوز. کی کچھ جو ہیں وہ امپورٹنٹ کمپیوٹر نیٹ ورکس جو ہم نیچے ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ نیٹ ورکس آر یوز ٹو ایکسیس شیئر ڈیٹا. کہ نیٹ ورک جب تک آپ کے پاس نیٹ نہیں ہوگا, نیٹ ورک نہیں ہوگا تب تک آپ کوئی ورک نہیں کر سکتے, کوئی ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. یوز ٹو ایکسیس شیئر ڈیٹا, یہ ڈیٹا کو شیئر کرنے کے لیے ہم نیٹ ورکس کا یوز لازمی کرتے ہیں. یہ نیٹ ورکس آر یوز ٹو شیئر ڈفرینٹ ڈیوائسز. ہم ڈیٹا کو ڈفرینٹ ڈیوائسز سے بھی یوز کر سکتے ہیں. کوئی لیپ ٹاپ سے ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے, کوئی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے سینڈ کر رہا ہوتا ہے,
کوئی टैब से कर रहा होता है, कोई मोबाइल से कर रहा होता है, सच एज प्रिंटर्स, कोई प्रिंटर से कर रहा होता है, एंड हार्ड डिस्क, कोई हार्ड डिस्क के थ्रू भी जो है वो डाटा सेंड कर रहा होता है, कोई मेल के थ्रू भी डाटा जो है वो सेंड कर रहा होता है। नेटवर्क्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स, नेटवर्क्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है डिफरेंट पीपल्स के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप जो है वो मैसेज सेंड करते हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप एक मैसेज सेंड करते हैं तो वो कम्युनिकेट हो रही होती है। जैसे मैंने पेपरों के अंदर आपको एक मैसेज सेंड किया तो वो ऑल स्टूडेंट्स ने जो है वो रिसीव किया, ऑल स्टूडेंट्स को जो है वो मिला, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेटवर्क आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स, यानी कि आप डिफरेंट पीपल्स थे, मैंने आप लोगों को एक मैसेज किया तो वो सारे लोगों को सेंड हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जहाँ जहाँ भी थे आप लोगों को मैसेज रिसीव हो रहा था मेरा जी। नेटवर्क्स आर यूज्ड टू सेंड ईमेल्स, नेटवर्क्स जो है वो हम ईमेल के थ्रू भी डाटा अपना सेंड कर सकते हैं। विद अटैचमेंट्स, कोई भी चीज़ जो है वो अटैचमेंट लगा के, कोई चीज़ अटैच करके, जैसे आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो है पिक्चर अटैच करके जो है गैलरी के अंदर जाके सेंड करते हैं, और फाइल्स या कोई भी फाइल ETC, तो इस चीज़ का नाम जो है वो हम नेटवर्क इस वजह से यूज़ करते हैं कि ईमेल्स सेंड करने के लिए भी विद अटैचमेंट्स, कोई अटैचमेंट फाइल और फाइल्स और कोई अटैचमेंट फाइल भी इसको अटैच करके हम सेंड करते हैं, इस चीज़ का नाम भी नेटवर्क है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। हमारे पास क्या होता है कि वर्क ग्रुप इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन अ टास्क, कि एक टास्क आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है, जैसे आप लोगों को पेपर दिया, ठीक है, तो आप सब लोगों ने इकट्ठे मिल के जो है उसको सॉल्व किया, और उसके अलावा जो है इंडिविजुअल्स आपने अलग अलग, पेपर एक ही था अब सब लोगों का, आप लोगों ने जो है वो सॉल्व किया, उसके अलावा इंडिविजुअल फिर आपने उसको कलेक्ट किया और अलग अलग इंडिविजुअली आप लोगों ने सेंड किया, इस चीज़ का नेम है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। आपने लेक्चर्स जो है वो कंबाइन लिया और आपने पेपर्स जो है वो डिफरेंट जो है वो इंडिविजुअल सॉल्व करके जो है वो पोर्टल के ऊपर सेंड किया, इस चीज़ का नेम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाता है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग अकर्स व्हेन ऑल द इंडिविजुअल्स, और इसके ऊपर जो है ग्रुप एक ही होता है, उसको असाइनमेंट्स या पेपर एक ही दिया जाता है, लेकिन वर्क हर बंदा अपना अपना करता है। ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू नेटवर्क, कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है, दैट अलाउज देम टू सेंड ईमेल्स टू वन अनदर, एक दूसरे को हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, शेयर डाटा फाइल्स, कोई डाटा भी शेयर कर सकते हैं, एंड शेड्यूल्ड मीटिंग्स, और कोई शेड्यूल मीटिंग भी हम सेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपका लेक्चर जो है वो 10 बजे है या 11 बजे है, या मैं आपका एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना चाहता हूँ, तो आप लोग जो है वो ऑनलाइन हो जाएं, तो शेड्यूल मीटिंग में ही ये चीज़ें आती हैं। जैसे पेपरों से पहले मैं कहूँ आप क्लास में आ जाएं तो हमने कुछ डिस्कस करना है, तो ये शेड्यूल एक्स्ट्रा शेड्यूल मीटिंग है हमारी, इस चीज़ का नाम जो है वो हमारी शेयर डाटा फाइल्स एंड शेड्यूल मीटिंग्स कहलाता है। ये भी वर्क ग्रुप के अंदर, वर्क ग्रुप कंप्यूटर के अंदर जो है वो शामिल है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज ग्रुप वेयर। ग्रुप वेयर क्या होता है? ग्रुप वेयर रेफर्स टू प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स पीपल, ये लोगों की मदद करता है, वर्क टुगेदर कलेक्टिवली, और ये लोग इकट्ठे काम करते हैं, वाइल लोकेटेड रिमोटली फ्रॉम ईच अदर, और ताकि यहाँ एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं रिमोटली के जरिए, यानी कि नेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज सर्वर, कि इस सर्वर इज अ कंप्यूटर, सर्वर एक कंप्यूटर होता है, दैट प्रोवाइड्स डाटा, जो कि डाटा प्रोवाइड्स करता है टू अदर कंप्यूटर्स। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि योर टीचर इज आल्सो कॉल्ड ए सर्वर, आपका जो टीचर है वो सर्वर है। अब मैं एक मैसेज करता था, एक लेक्चर देता था, वो सारे स्टूडेंट सुनते थे, इस चीज़ का नाम है सर्वर। डाटा मैं आपको लेक्चर्स डाटा की फॉर्म में देता था, तो आपको अदर्स कंप्यूटर्स, आप छोटे कंप्यूटर्स हैं, मैं जो वो सर्वर हूँ, मेन कंप्यूटर्स हूँ, तो आपको डाटा जो सेंड करता था वो ऑल कंप्यूटर, यानी कि सर्वर इज अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होता है दैट प्रोवाइड्स डाटा, और अदर कंप्यूटर्स दूसरे कंप्यूटर्स को जो है वो डाटा प्रोवाइड करता है। सर्वर इज ए मेन कंप्यूटर, सर्वर को मेन कंप्यूटर भी कहते हैं। It may serve data to systems on a local area network. Local area network यानी कि आप क्लास के अंदर ही क्लास ले रहे हैं, लैन, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लोकल एरिया जो है वो विद इन ए रूम, विद इन ए जो है वो कैंपस होता है, विद इन ए क्लास होता है, विद इन ए लैब होता है,
और ए वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है ओवर द इंटरनेट। टोटल ये इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है यानी कि ऑल स्टूडेंट जो हैं वो सारे टीचर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ सर्वर्स एग्जिस्ट, बहुत सारे जो है वो सर्वर्स होते हैं, इंक्लूडिंग वेब सर्वर भी होता है, मेल सर्वर भी होता है जिससे हम मेल सेंड करते हैं, वेब सर्वर वो होता है जिससे हम कोई नेट के ऊपर जो है वो कोई चीज़ सर्च करते हैं, एंड फाइल सर्वर, और फाइल सर्वर वो है कि हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर भी ही कोई फाइल सर्च करते हैं। ईच टाइप रन्स सॉफ्टवेयर, हर टाइप जो है ये सॉफ्टवेयर कहलाती है और सॉफ्टवेयर ही इसको रन करता है स्पेसिफिक टू द पर्पस ऑफ द सर्वर, और ये खास मकसद होता है सर्वर का कि ये दूसरों को डाटा सेंड करता है। जी नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज क्लाइंट, कि क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क होता है इन विच वन सेंट्रलाइज्ड, ये जो है सेंट्रलाइज होते हैं। पावरफुल कंप्यूटर्स कॉल्ड द सर्वर, जो पावरफुल कंप्यूटर होता है वो सर्वर कहलाता है। इज ए हब, वो हब भी होती है क्योंकि वो सब को डाटा ट्रांसफर करता है। ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू ए सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। टू विच मैनी लेस पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर्स, और इसके साथ बहुत सारे जो है वो इनके साथ जो है वो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं पावरफुल, और वर्क स्टेशन, इनका एक वर्क स्टेशन होता है कॉल्ड क्लाइंट्स, और इसके अंदर जो है वो इसको क्लाइंट्स कहते हैं, और कनेक्टेड जो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। मैं सर्वर हूँ, आप लोग क्लाइंट्स हैं, आप लोग छोटे कंप्यूटर्स हैं, लेस पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, तो इस वजह से मैं डाटा सेंड करूंगा, आप लोग जो है वो रिसीव करते हैं। द क्लाइंट्स रन प्रोग्राम्स, जो क्लाइंट्स होते हैं वो प्रोग्राम को रन करते हैं, एंड एक्सेस डाटा, और डाटा हासिल करते हैं किससे, मेन कंप्यूटर से, दैट आर स्टोर्ड इन द सर्वर, जो कि सर्वर को फिर जो है वो स्टोर करके दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, आप क्लाइंट्स हैं, और इसके अलावा जो है आप जो है वो क्लाइंट सर्वर हैं और मैं मेन सर्वर हूँ, आपको असाइनमेंट दी, आपने जो है वो सोल्व करके मुझे जो है वो सारे स्टूडेंट जो है वो सबमिट करवा दी। इट इज आल्सो कॉल्ड सर्वर। कंप्यूटर्स कंपेयर पेयर टू पेयर नेटवर्क, इसको हम पेयर टू पेयर नेटवर्क भी कहते हैं, यानी कि आप लोग पेयर की फॉर्म में मुझे जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं। जी नेक्स्ट हम पेयर टू पेयर मॉडल, ये पेयर टू पेयर सर्वर एक ही बात है, ये पेयर टू पेयर और P2P इसका नेम है, इज ए नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क होता है इन विच कंप्यूटर्स शेयर डाटा डायरेक्टली, के कंप्यूटर जो हैं वो डाटा डायरेक्टली शेयर करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विदाउट द नीड ऑफ ए सेंट्रल सर्वर, और इनको सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल जो है अगर मैं कभी जो है टीचर क्लास में नहीं है तो वो CR को जो है सारे स्टूडेंट्स जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं। इस चीज़ का नेम है पेयर टू पेयर नेटवर्क। ये पेयर टू पेयर इज़ ए फीचर ऑफ, ये फीचर है फॉर एग्जांपल जो है डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक चेन्स, और इनकी एक चेन्स बनी होती है स्टूडेंट्स की, कि अगर एक मैसेज जो है वो CR को जाता है, एक मैसेज क्लास में जाता है, तो वो सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि टीचर ने ये मैसेज जो है इस चीज़ का नेम जो है ये मैसेज जो है वो सेंड किया है। जी क्लाइंट्स होता है, ये भी क्लाइंट्स होते हैं, और ये सेंटर में सर्वर होता है। क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स आपने देखा होगा कि टीचर जो है वो सेंटर में ठहरा होता है और उसके लेफ्ट पे भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, यानी कि लेफ्ट पे भी क्लाइंट्स बैठे होते हैं और राइट के ऊपर भी जो है वो क्लाइंट्स होते हैं, और इसको TCP कनेक्शंस कहते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन, T से ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल, P से प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये होता है कि सेफली डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड TCP, यानी कि इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो इस चीज़ का नाम जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो सेफली डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के, ये भी डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह डाटा जो है वो ट्रांसफर करता है, इसको हम TCP कहते हैं। और ये मेन सर्वर होता है जो इन सब को डाटा जो है वो ट्रांसफर करता है। अब मेन सर्वर जो टीचर इज मेन सर्वर, टीचर ने आपको पेपर फॉरवर्ड किया तो आप लोगों को जो आप क्लाइंट्स थे उनको जो है वो सेंड हुआ, और उसके बाद जो है आप लोगों ने उसको सॉल्व किया, तो इस चीज़ का नाम जो है वो सर्वर कहलाता है। यानी कि पेयर टू पेयर, यानी कि जुड़े होते हैं, हम मिल के काम करने को जो है वो पेयर टू पेयर मॉडल कहते हैं या पेयर टू पेयर सर्वर कहते हैं। कि ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।